So today we start our year with a nice, interesting chapter from Moments, and that's related to your lesson six, weathering the storm in Ersama. First of all, few meanings, important word meanings are written over here, and you may just go through it. So let's move ahead. Now, you must have at least heard, though we have not experienced all these things, but at least we had heard through newspapers and various medias and news channel and all, that in 1999, in October, the cyclone had hit Orissa and it killed thousands of people, destructed hundreds of villages, and for two fearful nights, that is dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned, that is trapped, on the roof of a house. तो 2 दिन तक ये आदमी जो था प्रशांत, we would not say he was like 40, 50, 60 years, but he was maybe in his 20s, and he was trapped on the roof of a house in his friend's village where he had been before the cyclone had hit Orissa in their village. And on the third day, he decided to go to his own village. Did he find his family or not? Let's see. On 27 October 99, 7 years after his mother's death, मतलब 7 साल हो चुके थे प्रशांत की मम्मी को की डेथ हुए, and Prashant had gone to the block headquarters of Ersema, a small town or you can call it a village in coastal Orissa. अब वो 7 साल के बाद उसकी मम्मी की डेथ के बाद on 27 October 1999 he decided to go to a small town. It was some 18 kilometers from his own village और उसके खुद के गांव से ये 18 किलोमीटर दूर था, to spend a day with a friend. और उसका friend in this एरसेमा गांव में रहता था. In the evening a dark and menacing, मतलब dangerous, threatening storm quickly gathered. और अचानक से उसी दिन, जिस दिन वो गया उस दिन शाम को एकदम से डरावने बादल छा गए, स्टॉर्मी विंड बहने लगी, एंड विंड्स बेट अगेंस्ट द हाउसेस. इतनी तेज हवा चल रही थी जैसे पूरा घर हिल रहा हो, विद अ स्पीड एंड फ्यूरी दैट प्रशांत हैड नेवर सीन बिफोर, विटनेस, मतलब कभी इसके पहले प्रशांत ने ऐसी तेज हवा चलते हुए नहीं देखी. इट वॉज अ स्टॉर्मी इवनिंग. Heavy and continuous rain filled the darkness. फिर तो बारिश शुरू हो गई. Ancient trees were uprooted. जो पुराने trees थे, strong trees थे, फिर भी वो जमीन से उखड़ के बाहर आ गए. And they crashed to the earth. और जमीन पे गिर गए. Screams rent the air. और air मतलब हवा में चिल्लाहट की गूंज सुनाई देने लगी लोगों को. That is, screams rent the air. As people and houses were swiftly washed away. और लोग तो यहाँ से वहाँ पानी में बहने लगे. The angry water swirled into his friend's house neck deep. और ये जो पानी था जो गुस्से में आगे बढ़ रहा था, गुस्से में मतलब बहुत तेजी से, heavy flow of this water, क्योंकि साथ साथ हवा तेज चल रही थी, cyclone it was, and heavy rainfall उसके साथ. तो ये जो पानी था वो स्वर्ल हो रहा था, मतलब गोल गोल चक्कर मारता हुआ घूम कर के उसके घर के उसके फ्रेंड के घर में एंट्री ले चुका था. नेक डीप मतलब गले तक. द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 kilometer per hour. और ये बिल्डिंग, उसका घर जो था, उसके फ्रेंड का घर, थैंक गॉड, it was made of brick and mortar, मतलब सीमेंट एंड ऑल, or strong enough it was to face the destructive wind speed. और जो विंड की जो स्पीड थी वो डिस्ट्रक्टिव थी. आसपास के सारे घर जो सीमेंट या ब्रिक के नहीं बने हुए थे वो बहते जा रहे थे, लोग बहते जा रहे थे, मर रहे थे लोग. लेकिन अच्छा हुआ कि वो जो फ्रेंड के घर के यहाँ गया, घर में गया था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग घर था जो इस विंड की स्पीड थी 350 किलोमीटर पर आवर, उसके सामने वो टिक पाया. But the cold fear, that is terror of the family, grew with the crashing of the trees that had got uprooted and fallen in their house. लेकिन पूरे उसके फ्रेंड की फैमिली जो थी और खुद प्रशांत जो वहां पे था उनके फैमिली के साथ, वो डर के मारे बैठे हुए थे. घर के ऊपर चले गए, रूफ के ऊपर, और देख रहे थे. डर बढ़ता रहा उनका, क्योंकि आसपास के ट्रीज गिर रहे थे उनके घर पे. Sometime in the middle of the night, damaging his roof and walls.
और आधी रात को तो ट्रीज एकदम से उनके रूफ पे गिर पड़ते और जैसे अभी घर टूट जाता और वो भी मर जाते शायद, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग था वो. The crazy destruction wrought that is brought by the cyclone and the surge of the ocean that is increasing of that ocean water continued for next 36 hours, more than a day, I would say, right? तो ये डिस्ट्रक्शन चलता रहा जो साइक्लोन लेके आया था अपने साथ. ओशन का पानी बढ़ता रहा फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स. ऑल्दो विंड स्पीड हैड रिड्यूस समवॉट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, यस, लेकिन हवा की जो स्पीड थी वो थोड़ी बहुत कम हो गई थी बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग. टू एस्केप द waters rising in the house, Prashant and his friends family had taken shelter on the roof, that is refuge on the roof. अब इस राइजिंग वाटर से मतलब पानी जो बढ़ रहा था उनके घर में उससे बचने के लिए उन्होंने प्रशांत और उसके फ्रेंड और फैमिली रूफ पे चले थे अपने आप को बचाने. प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स. पहली झलक जो उसने डिस्ट्रक्शन की देखी थी, फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डिवास्टेशन ब्रॉट बाय द सुपर साइक्लोन. मतलब जो सुपर साइक्लोन ने जो डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया था उसकी पहली झलक जब प्रशांत ने देखी थी तो उसके लाइफ में वो नहीं भूल पाएगा वो. इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, और दूसरे दिन सुबह सुबह सूरज तो नहीं चमका था तो अंधेरा अभी भी था दूसरे नेक्स्ट मॉर्निंग. एंड ही सॉ द डिस्ट्रक्शन इन हिज सराउंडिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द रूफ ऑफ द हाउस. अ रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आईज कुड सी. और जहां तक उसकी आंखें देख सकती थी वहां तक उसको सिर्फ एक ब्राउनिश कलर पानी का आगे बह रहा था. ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेस पे क्रैक पड़ी हुई थी, बट दे स्टिल स्टूड एट इन अ फ्यू प्लेसेस. लेकिन ये सीमेंट के घर कहीं पे खड़े थे अभी भी. ब्लॉटेड एनिमल कार्केसेस, पानी में फूल गए हुए डेड बॉडी ऑफ द एनिमल्स. कार्केसेस मतलब डेड पार्ट ऑफ डेड बॉडी. ब्लॉटेड मतलब पानी जाके जब वो फूल जाते हैं बॉडी. एंड ह्यूमन कॉप्सेस मतलब ह्यूमन बीइंग की भी डेड बॉडी फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन. यहाँ वहाँ पानी में हर जगह पे प्रशांत देख रहा था डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग वर फ्लोटिंग ऑल राउंड. इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन. यहाँ वहाँ सब जगह पे बड़े बड़े पुराने झाड़ टूट के गिरे हुए थे. 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. और उनके घर के रूफ के ऊपर 2 कोकोनट ट्रीज गिरे हुए थे. ये अच्छा हुआ था. Why? It was counted like a blessing in disguise. अब क्यों इसे उन्होंने कहा blessing in disguise? मतलब कि एक आशीर्वाद समान था ये उनके लिए, ये दुख के समय पे, डिस्ट्रक्शन के समय पे. कुछ लेके आता है डिस्ट्रक्शन, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये एक आशीर्वाद बना. Why? Because this tender coconut from the trees kept the trapped family from starving in several days that followed. और थोड़े दिन तो ऊपर ही उनको रहना पड़ा. तो ये ही मतलब जो 2-3 दिन वो लोग ऊपर बैठे रहे रूफ के ऊपर घर के, तो ये ही ट्रीज के टेंडर सॉफ्ट कोकोनट उनको काम आए, उनका पेट भरने में थोड़ा बहुत एटलीस्ट. For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friends, family in the open on the rooftop. तो 2 दिन तक ऐसे करके बैठे हुए थे रूफ के टॉप पे, हडल ऐसे, नीज को अपने चेस्ट की तरफ ले लेना और एकदम से खुद को कवर करके ऐसे बैठ जाना. दे फ्रोज इन द कोल्ड क्योंकि बहुत ठंड भी थी. सो दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड कंटिन्यूअस रेन, इंसेसेंट रेन. द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स. वो रो रहा था लेकिन पता नहीं चल रहा था क्योंकि बारिश का पानी उसके टीयर्स को वॉश आउट कर रहा था साथ साथ. द ओनली थॉट दैट फ्लैश दैट केम थ्रू हिज माइंड वाज, whether his family has survived this anger of the super cyclone. क्या मेरी फैमिली बची या नहीं बच पाई इस सुपर साइक्लोन के गुस्से से. Was he to be bereaved once again? Bereaved मतलब क्या एक बार फिर उसकी फैमिली उससे छीन ली जाएगी और वो अकेला रह जाएगा इस दुनिया में, क्योंकि 7 साल पहले मम्मी चली गई, अब उसे लगा शायद पूरी फैमिली चली गई तो मैं तो अकेला हो जाऊंगा. 2 days later, which seemed to प्रशांत like 2 years, हुए थे 2 दिन लेकिन 2 साल तक जैसे लगे प्रशांत के लिए. The rain stopped, that is ceased, and the rainwater slowly began to recede, that is कम होने लगा पानी. प्रशांत was determined, उसने डिसाइड कर लिया था to seek, that is find out his family without any delay, without further delay. But the situation was still dangerous. लेकिन अभी भी डेंजरस थी सिचुएशन क्योंकि पानी तो कम हो रहा था लेकिन था तो सही वहां पे. पहले नेक तक था, अब शायद नी तक आ गया हो, लेकिन डेंजर था.
and his friend's family requested Prashant to stay back a little while longer. और फ्रेंड की फैमिली ने प्लीड किया, रिक्वेस्ट किया उसे that don't go, stay a longer 1 or 2 more. But Prashant knew he had to go. लेकिन प्रशांत को उसकी फैमिली को ढूंढना था. So he equipped himself with a long strong stick, sturdy मतलब strong, मोटी लंबी strong stick ले लिया हाथ में, and then started on his 18-kilometer journey, his expedition बैक टू हिज विलेज. एक्सपीडिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसी जर्नी पे निकलते हो जहां तुम्हें पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला हो, तो उसे हम कहते हैं एक्सपीडिशन. सो ऑन हिज 18-kilometer एक्सपीडिशन बैक टू हिज ओन होम टाउन, दैट इज विलेज, थ्रू द स्वोलन फ्लड वाटर. और पानी तो था शायद नी तक, कहीं पे कमर तक, या कहीं पे शायद गले तक. तो ये स्वोलन फ्लड वाटर में आगे बढ़ता रहा. इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट इन हिज लाइफ. He continuously had to use his stick to locate the road. और आगे कोई चल रहा हो तो पता चले, वो गिरे तो हमें पता चला हमें वो रास्ता पिकअप नहीं करना है. लेकिन ये तो वो अकेला चल रहा था, तो उस स्टिक से वो आगे का रास्ता जज कर रहा था. टू डिसाइड वेदर द वाटर वॉज मोर शैलो और नॉट. टू डिटरमाइन मीन्स टू डिसाइड. और डंडे से पता भी चलता था कि भाई आगे डीप वाटर है या शैलो है. शैलो मतलब कम डीप. एट प्लेस इट वॉज वेस्ट डीप एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो. कहीं पे तो कमर तक पानी था, तो आगे बढ़ना थोड़ा स्लो हो जाता था. एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम. कई जगह पे तो रास्ता ही नहीं मिल रहा था और उसको स्विम करना पड़ रहा था. आफ्टर सम डिस्टेंस ही वाज रिलैक्स्ड, ही वाज रिलीव्ड टू फाइंड 2 friends of his uncle who were also returning to their village. They decided to move ahead together. अब उसके अंकल के 2 फ्रेंड मिल गए रास्ते में, तो खुश हो गए. थैंक गॉड, कोई तो है जिसका सपोर्ट लेके मैं आगे बढ़ पाऊं. वो भी एक ही गांव के थे सब तीनों. As they waded मतलब जैसे डक जो पानी में रहते हैं, तो वो they swim and they even anyone like waterboard. तो हम तो जमीन पे चलते हैं, लेकिन जब पानी के थ्रू चल के आगे बढ़ना है तो उससे हम यूज करते हैं वर्ड waded, like the birds, water birds wade. As they waded through the waters, the scenes that they saw, that they witnessed, grew more and more macabre. अब macabre मतलब frightful, fearful. Men, women, children, and dead body of dogs, goats, cattle. That the current swept, current मतलब पानी का बहाव, swept against them as they moved ahead. अब वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पानी का बहाव उनके अगेंस्ट था. तो सामने वो पानी का बहाव उनके ऑपोजिट डायरेक्शन से जा रहा था. वो उनकी स्पीड स्लो कर रहा था चलने में. एक तो प्रशांत और 2 उसके अंकल के फ्रेंड की स्पीड कम हो जा रही थी क्योंकि पानी का बहाव उनके सामने से आ रहा था, ऑपोजिट डायरेक्शन. सेकेंड, अब वो पानी का बहाव उनके सामने क्या लेके आ रहा था? डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग. इन एवरी विलेज दैट दे पास्ड, 18 किलोमीटर दूर खुद का घर. बीच में फ्रेंड के घर से खुद के गांव तक जाते जाते बहुत सारे गांव आए बीच में. इन एवरी विलेज दैट दे पास दे कुड हार्डली सी अ हाउस स्टैंडिंग. बैरली मतलब हार्डली एक आध 2 घर मिले जो खड़े थे पानी में, बाकी सब बह गए. प्रशांत नाउ क्राइड आउट लाउड एंड लॉन्ग. अब वो रो रहा था, उसको लगा मेरा घर भी डिस्ट्रॉय हो गया होगा, फैमिली नहीं होगी मेरी. Prashant now cried, that is, wept out loud and long. He was sure that his family could not have survived this catastrophe. Catastrophe मतलब destruction. बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन लेके कुछ आता है, कोई ऐसा एक्सीडेंटल समथिंग हैपेंस. तो ये नेचुरल था जहाँ पे डिस्ट्रक्शन आया बहुत सारा. तो ही वॉज श्योर कि फैमिली तो सर्वाइव होगी ही नहीं, वो जिंदा नहीं रही होगी. एंड अगेंस्ट दिस कैटेस्ट्रॉफी फाइनली प्रशांत रीच हिज विलेज कालीकुड़ा. हिज हार्ट वेंट कोल्ड. डर गया था वो, ठंड पड़ गया था वो खुद. वेयर देयर होम वंस स्टूड देयर ओनली रेमिनेंट्स, दैट इज रिमेनिंग्स ऑफ हिज रूफ. घर जहाँ पे था अब वहां पे घर नहीं था, सिर्फ घर का रूफ दिख रहा था. टूटा फूटा घर दिखाई दे रहा था. सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट, थोड़ी बहुत घर की चीजें दिखाई दे रही थी. मैंगल एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. मैंगल एंड ट्विस्टेड मतलब अटक जाना ट्री के ब्रांचेस में. तो उसके घर की चीजें ट्री के ब्रांचेस में अटक गई थी. जस्ट विजिबल अबाउट दैट ब्राउन डार्क वाटर. और ये सब दिखाई दे रहा था उसको ब्राउन डार्क वाटर के ऊपर बहता हुआ या अटका हुआ ट्री के ब्रांचेस में. Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. अब उसने सोचा चलो भाई मैं यहाँ पे तीसरे दिन आ रहा हूँ, लेकिन शायद मेरे घर वाले बच गए और रेड क्रॉस वाले जो आए उनको सपोर्ट करने वहां पे मेरे फैमिली होगी शेल्टर लेती हुई. Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother, मतलब नानी.
मेटल मतलब मदर साइड, क्योंकि इंग्लिश में तो सब कुछ ग्रैंड मदर सेम है, दादी नानी सेम, अंकल चाचा मामा सेम, आंटी मामी चाची सेम। तो कजिन्स, मामा के हो या बुआ के हो या चाचा के हो, सब कजिन। तो इंग्लिश में सब सेम वर्ड। लेकिन हम अगर मैटरनल वर्ड यूज करें तो क्लैरिटी होगी कि मामा साइड, पैटर्नल मतलब पापा साइड। तो वीक, सो ही सॉ हिज नानी, वीक विद हंगर शी रश टू हिम। अब नानी बेचारी भूखी प्यासी, लेकिन बच्चे को देख के दौड़ पड़ी और अपने हाथ फैलाए हुए उसको गले लगा लिया। हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, हर आईज ब्रिमिंग विथ टीयर्स, और आंखें छलक चुकी थी आंसू से। इट वॉज अ मिराकल, दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड। और नानी और बाकी के घर के मेंबर्स के लिए तो ये एक मिराकल था, उनको लगा कि ये लड़का मर ही गया होगा उनका। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली, मतलब फैमिली के दूसरे मेंबर्स, दे केम रनिंग, न्यूज फैल चुके थे कि बच्चा जिंदा है। एंड दिस फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और हाश करके सब उसको लिपट पड़े, गले लगाया। प्रशांत वेरी एंशियसली स्कैन द मॉटली, मतलब वहां पे जितने भी लोग थे, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे वहां पे, उसने देखा बैटर्ड ग्रुप, यहाँ वहाँ थोड़े थोड़े ग्रुप थे। हिज ब्रदर सिस्टर अंकल आंट, सब लोग जिंदा थे, दे ऑल सीम टू बी देयर। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग एज इट टुक इन द डेस्परेट सिचुएशन द शेल्टर, दूसरे दिन सुबह उसने देखा सब दुखी थे शेल्टर में। ही डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ, उसने कहा पहले मैं खुश हो लूं, इस दुख में से पहले मैं बाहर निकलूं तो मैं दूसरों को खुशी दे पाऊंगा ऐसे बुरे समय में। ही सेंस्ड द डेथली ग्रीफ, और उसने देख लिया सब लोग डेथली ग्रीफ में थे, अनलिमिटेड सॉरोफुल कंडीशन में थे, सेटलिंग अपॉन दी 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर, और ये सब दुखी थे। 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज, कईयों के बच्चे मर गए तो माँ जिंदा थी, कईयों की मम्मी और डैडी ऑफ हो गए तो बच्चे जिंदा थे। ऑल दी 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे, पूरा गांव साफ हो चुका था। इट वॉज देयर फोर्थ डे एट द शेल्टर। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट, अब तक तो कोकोनट खा पी के जिंदा थे। बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच ए ट्यूमल्ट ऑफ पीपल, और इतने सारे लोग, इसमें तो इतने कोकोनट अब नहीं हो पाएंगे, तो कुछ तो इंतजाम करना था कि खाना मिले उनको। सो प्रशांत टुक द लीडरशिप। Now, Prashant was 19 years that time, decided to step in as leader of his village, if no one else did. कोई डर के मारे या दुख के मारे आगे नहीं आ रहा था, उसने सोचा मैं लीडरशिप ले लूं। ही ऑर्गेनाइज अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स, उसे एल्डर्स और यूथ को बुला लिया कि चलो हम एक ग्रुप बनाते हैं, टू जॉइंटली प्रेशराइज द ग्रेनरी शॉप वाला मर्चेंट, करियाणु। वहां पे वो चलेगा और उसको फोर्स करते हैं कि चलो भाई कुछ नहीं तो चावल तो दे दो। पहले जाके आए थे वो लोग, लेकिन मर्चेंट ने नहीं दिया था। सो डिसाइड टू प्रेशराइज, जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस। पार्ट मीन्स टू गिव देम देयर हिज राइस। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड, मतलब मीटिंग, जब जो मीटिंग हुई इट सक्सीडेड एंड रिटर्न विक्टोरियसली, दैट इज ट्रायम्फेंटली, वेडिंग थ्रू, दैट इज वॉकिंग थ्रू वाटर, बट लेसनिंग वाटर, रिसीडिंग वाटर, जब पानी कम हो रहा था उसमें से चल के वो रिटर्न हुए विथ फूड फॉर द एंटायर शेल्टर। नो वन केयर दैट द राइस वाज ऑलरेडी रॉटिंग, किस लोगों को इतनी भूख लगी थी कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, मतलब जानबूझ के भी ध्यान नहीं दिया कि ठीक है जाने दो, सड़े हुए राइस है, इट्स ओके वी विल ईट। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट अ रिलक्टेंट एंड स्लो फायर। अब ब्रांचेस से जो ब्रांच गिरे हुए थे और ट्रीज पे से टूट के, तो वो गीले थे, जल्दी जल नहीं रहे थे, मतलब रिलक्टेंट। तो स्लोली स्लोली फायर जली ऑन विश टू कुक द राइस, फिर राइस को कुक किया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोनिक शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज, पेट भर के खाया सबने 4 दिन के बाद इस शेल्टर में, साइक्लोन के बाद। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, that is dirtiness, urine, vomit, floating dead bodies, and to tend to the wounds, मतलब सबके घाव भरो, and fractures of the many who had been injured. अब एक यूथ की टीम उसने ऑर्गेनाइज की, बनाई, और एक नया टास्क दिया। नेक्स्ट टास्क मतलब नया काम क्या था दूसरा, कि भाई जहाँ पे वो लोग शेल्टर लेके बैठे थे वहीं पे बहुत ही डर्टीनेस थी, लोग वॉमिट कर रहे थे, वहीं पे यूरिन, वहीं पे डेड बॉडी थी पड़ी हुई पानी में सड़ रही थी, उसको पहले हटाना। उसके बाद जिनको लगी थी वुंड्स थे, या जो मन से दुखी थे, या जिनको फ्रैक्चर हुआ था उनको, और जो इंजर्ड थे उनका ध्यान रखो, मेडिकल ट्रीटमेंट दो अगर हो पाए तो। ऑन द 5th day मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप सम फूड पार्सल्स, इट देन डिड नॉट रिटर्न, फिर कभी नहीं आया वो हेलीकॉप्टर, थोड़ा बहुत फूड पार्सल डाल के चला गया। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड
एम्प्टी यूटेंसिल्स, फिर तो यू टास्क और एक था, ये यंग बच्चों का एक और एक काम उसने दिया कि भाई एम्प्टी वेसल्स ले लो फ्रॉम द शेल्टर. देन दे डेप्यूटेड द चिल्ड्रन, मींस टोल्ड द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड लेफ्ट बाय द वाटर्स. अब पानी जो पीछे की ओर अब कम होता जा रहा था, लेकिन वो मिट्टी छोड़ के जा रहा था जमीन पे जो अपने साथ वो लेके आया था. तो उस मिट्टी पे बच्चों को लिटा दिया around the shelter with these utensils on their stomach to communicate to the passing helicopter that they were hungry. अब उसकी जो बर्तन की जो लाइट वहां तक उन तक पहुंचेगी ऊपर, और हेलीकॉप्टर पास होंगे, उनको पता चल जाएगा कि नीचे है इस एरिया में जहाँ पे लोग हंग्री हैं, एंड देन तो ये कम्युनिकेशन पहुंच जाएगा वहां तक दैट दे वर हंग्री. द मैसेज गॉट थ्रू, मैसेज मिल गया हेलीकॉप्टर को. एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स. फिर तो रोज का हेलीकॉप्टर का आना और उनको सपोर्ट करना. प्रशांत फाउंड दैट लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन. फिर ये देखा कि बहुत सारे बच्चे अनाथ हो चुके थे. ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलीथीन शीट, ऐसे एक पॉलीथीन शीट टेंट बना लिया, एंड पुट अप अ पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम. विमेन वर मोबिलाइज, मतलब विमेन को कहा कि काम पे काम करना स्टार्ट कर दो. मोबिलाइज मतलब मूव होना. और उनको क्या काम दिया कि भाई बच्चों को संभालो, टू लुक आफ्टर दिस चिल्ड्रन, टू लुक आफ्टर देम, while the men went and got the food and material for the shelter. Secure means went and got. As the week passed, अब तो बहुत सारे हफ्ते पास हो गए. प्रशांत was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. अब प्रशांत को पता चल चुका था कि 2-3 हफ्ते हो गए, लेकिन जिन माँ बाप के बच्चे मर चुके थे या बच्चे जिनके माँ बाप नहीं थे, वो धीरे 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 और ज्यादा दुखी रहने लगे थे. So he requested the women to start working in the Food for Work program started by an NGO. अब एनजीओ ने उनके गांव में आके स्टार्ट किया था फूड फॉर वर्क प्रोग्राम. तो एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है ये, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. तो उन्होंने, प्रशांत ने सब लेडीज को कहा कि आप ये काम करो, उनको सपोर्ट करो इस एनजीओ को. एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट, ताकि उनका मन यहाँ वहाँ चला जाए, रोए नहीं, दुखी ना हो सब लोग. He himself loved to play cricket, and so he organized cricket matches for children. Prashant engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives. और broken pieces of their lives मतलब कि जो टूट चुके थे उनको फिर से खड़ा किया उसने दूसरे वॉलंटियर्स के साथ. The starting or the initial government plan was to set up institution for orphans and widows. तो स्टार्टिंग में तो गवर्नमेंट ने, उनके उड़ीसा के गवर्नमेंट ने एक प्लान बना के दिया कि भाई हम इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे जो अनाथ हो चुके हैं या जो विडोज हुई है लेडीज, उनका हम ये इंस्टीट्यूशन ध्यान रखेगी. However, this stop was successfully resisted. लेकिन इस गांव के, प्रशांत के गांव के लोगों ने मिलकर ना कह दिया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तो इमोशनल टच नहीं होगा इस इंस्टीट्यूशन में. As it was felt that in such institution children would grow up without love and widows would suffer from stigma and loneliness. Stigma मतलब एक उन पे धब्बा लग जाएगा कि ये विडोज हैं. गांव में ऐसे होता है, तो यहाँ पे इनको प्यार नहीं मिलेगा बच्चों को और ये विडोज को. That is what Prashant and the young group and the others felt. Prashant's group believed orphan should be resettled. orphan को माँ बाप मिलने चाहिए. तो कैसे? तो उनको हम रीसेटल करते हैं अपने ही गांव में, इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ, पॉसिबली इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्ड विडोज. ऐसे घर में इन बच्चों को हम देते हैं जहाँ पे विडोज है, मतलब जिनके हस्बैंड नहीं है, इस फ्लड में मर चुके हैं, साइक्लोनिक इम्पैक्ट में मर चुके हैं, और वो अकेली रह गई हैं और उनके बच्चे भी नहीं है. तो ये दोनों साथ मिलके अच्छा बड़े हो सकते हैं प्यार से. एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर. It is 6 months after the destruction or devastation of the super cyclone. This time, Prashant's wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain. अब प्रशांत क्यों जल्दी अच्छा हो गया? क्योंकि उसको खुद के दुख के लिए सोचने में टाइम ही नहीं मिला, लोगों को सपोर्ट कर रहा था. His handsome, youthful face is what the widows and orphan children of his village even today wait for, seek out most in their darkest hour of grief. अब जब भी गांव में कुछ भी दुख आता हो, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो गांव के विडोज या ऑर्फन चिल्ड्रन या जो भी हैं दूसरे गांव के लोग, सब लोग किसकी राह देखते हैं कि हम मिले प्रशांत को. ही इज द वन हु हैज सेव्ड अस, एंड इन फ्यूचर ही विल बी द वन हु विल सेव अवर लाइफ एंड कीप अस हैप्पी इन द विलेज. बाय हर्ष मांडेर. Let's see one of the videos over here.
is the summary of the story Weathering the Storm in Ersama by Harsh Mandhar. On 27th of October 1999, Prashant was visiting his friend in Ersama, a small town in coastal Odisha. In the evening, a dangerous storm blew into the town. Prashant had never seen such a storm in his life. Furious winds and continuous rains raged around the house. They could hear trees crashing to the ground and screams of people as the storm blew away their houses. The friend's house was made of bricks and mortar. It was strong enough to stand against the wind. But it could not prevent the family's terror as trees fell on the house, cracking the roof and walls. For 36 hours, the storm raged around the house. Water entered their house. The household took to the roof to escape the water flooding inside the house. 46 hours later, it was the first time Prashant saw the devastation left in the wake of the cyclone. Brown water covered everything. There were dead bodies of animals and people floating in the water. Trees were scattered among the bodies. Not a single house was left standing. The next 2 days, the family and Prashant lived on the roof. Prashant, throughout the time, worried about his family back home. He wondered if he would lose his family like he lost his mother. On the third day, he decided to trek back to his family. The town was still flooded, and his friend's family warned him that it would be dangerous. But Prashant was determined. It was a long and difficult journey for Prashant. He used a stick to find his path. As he walked further, he had a first-hand experience of the devastation that he had earlier seen on the roof. He was disturbed by the bodies he had to push aside as he made his way through the water. These sights also made him feel helpless. He was sure his family had met the same fate as the bodies in the water. When he reached his village, Kalikuda, Prashant was terrified to find his house destroyed. There was no one in sight. He decided to go to the nearby Red Cross shelter to search for them. As he entered the shelter, he saw his maternal grandmother. His grandmother rushed to him, crying. She thought it was a miracle that he was alive. Prashant took count of his family. He felt grateful they were all alive. The next day, Prashant took stock of the situation in his village. Lives and homes had been lost. There was very little food left. His community was succumbing to grief and sadness. Though Prashant was only 19, he took charge of the village. He organized a youth group to get rice from the local merchant and distribute it to the survivors. Next, he organized volunteers to clean the shelters and tend to injuries. 5 days later, on the 5th day, a helicopter dropped a few food parcels. When it didn't return, the youth volunteers collected empty utensils. They had young boys lie on the ground with empty utensils on their bellies. This message got through to the helicopters and relief came frequently thereafter. There were also many children orphaned by the cyclone. Prashant brought them together under one shelter. Women were brought in to look after them, while men procured food for them. Prashant also realized that the women and children left grieving after losing their families needed to be engaged. He convinced women to join the Food for Work NGO program. He organized cricket matches to distract the children. Prashant and the Youth Task Force rejected the government plan for removing the women and children to institutions. He believed in resettling them in their community to enable a smoother healing process. Prashant, suffering from his experience of the cyclone, found new purpose and comfort in rebuilding his own community. Whenever a woman or child felt sad, they would seek the support of Prashant. His efforts show how a crisis can bring about heroism even in ordinary people.
So with this, we come to an end of this chapter, and next time, let's see if you have any thing like in urgency, you want me to move ahead with some chapter, you can just give a call or WhatsApp कि अब नेक्स्ट अगर कोई स्कूल में कोई हो रहा है और तुम्हें करवाना है, you can give a call. I would say that would be better. So thank you so much. Take care.